Hey guys, welcome back to the channel and I hope last जो वीडियो था regarding the current affairs you guys liked it. अबे कमेंट तो किया करो, हैव टू अंडरस्टैंड ना व्हाट यू गाइस फेल्ट अबाउट इट. इफ़ द जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरीके से करंट अफेयर्स को दिखाया जा रहा है मेरे साइड से, वेदर यू गाइज आर लाइकिंग इट और नॉट, वेदर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, वो थोड़ा कमेंट पे लिखो, समझ में तो आए कि मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको सुधारा जा सकता है. So today I am starting with the part 2 of January current affairs as such. And before I start, let me tell you, there is a mentoring session also going on side by side. The details will be there in the description, comments पे भी रहेगा. You can directly contact me in WhatsApp to get to know about the details of the coaching. ठीक है, वहाँ पे एंटायरली 9 मंथ का जो है वो सेशन चल रहा है एंड इट्स गोइंग ऑन टू, दिस इज़ मंथ 2 दैट इज़ गोइंग ऑन. तो इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स जस्ट कॉन्टैक्ट मी इन व्हाट्सएप. चलो तो आज चालू करते हैं. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स. तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी इन टेलीग्राम. यू कैन सर्च फॉर TCS over 16. You can just click here also, or you can directly contact me with WhatsApp. You can click here or directly इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, तो एंड आई एम दीपंकर दास. Anyways, so in this class today, current affairs, what we will do is we will cover 5 very important news. One is regarding Bru settlement, another regarding Gomati and Meghna in Bangladesh linking, something regarding Makar Sankranti, one very good news or very important news regarding Chabimura, and one very important news regarding PM Janman. Okay, चलो चालू करते हैं विद पहला न्यूज़ रिगार्डिंग ब्रू रीसेटलमेंट. The Bru resettlement जो न्यूज़ है, दिस यू कैन कनेक्ट विथ सेक्शन C इंडिया सोशियो कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा, जहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्राइबल ग्रुप्स, देयर नेचर, देयर regarding how they stay, their culture and heritage, everything we have to understand. तो रिगार्डिंग दैट अगर देखा जाए, दिस ब्रू रीसेटलमेंट इशू, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड इशू. ठीक है, नॉट वेरी ओल्ड, मतलब 1-2 साल पुराना इशू है. दिस इज़ नॉट दैट करंट अफेयर्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू गाइज शुड नो फ्रॉम त्रिपुरा पॉइंट ऑफ व्यू. तो 2 न्यूज़ आए दैट 54 ब्रू फैमिलीज रीसेटल्ड एट शांतिवजर कैंप एंड रीसेटलमेंट ऑफ ब्रूज इन लास्ट लेग. तो ये न्यूज़ पढ़ लेना. What you have to understand is the background of this Bru resettlement. ठीक है, तो the question is who are Brus or Riang, Bru or Riang. So they are a community as such indigenous to Northeast India and they live majorly or mostly in Tripura, Mizoram and Assam. In Tripura, Bru or Riang, they are recognized as PVTG. ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज शुड नो. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG. एंड another thing is many Brus in Assam and Tripura are Hindus, but in Mizoram they have converted to Christianity over the years. Now the question is, you guys have heard about Bru refugee, Bru Riang refugee, but point is कि भाई ये लोग refugees क्यों है? Why are they refugees here? देश पे रह के रिफ्यूजी कैसे हो सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि दूसरे कंट्री से दे हैव फ्लेड एंड दे हैव कम हियर इन त्रिपुरा. Here the thing is, in Mizoram they were targeted by the group that do not consider them as indigenous to the state. अब 1997 में ऐसा हुआ कि there were ethnic clashes. थोड़ा सा गूगल कर लो व्हाट इज फ्रेट्रिसाइडल सॉर्ट ऑफ क्लैशेस क्या होते हैं. तो 1997 देयर वर एथनिक क्लैशेस, नियरली 37,000 ब्रूज दे फ्लेड मामित, कोलासिब एंड लुंगलेट डिस्ट्रिक्ट. दीज आर द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग त्रिपुरा ऑफ मिजोरम, where they accommodated in various relief camps in Tripura, and specifically the relief camps are majorly in Kanchanpur subdivision and some are there in Panisagar subdivision. तो ये है, ये देख लो. So if this is Tripura, then यहाँ पे कोलासिब, मामित, लुंगले districts are there. तो यहाँ से they have come to Tripura, Kanchanpur. ठीक है, and also some in Panisagar. There are 2 or 3 refugee camps in Panisagar also. अब पॉइंट ये है कि एंड द थिंग इज व्हेन दैट रीसेटलमेंट थिंग स्टार्टेड,
I was there posted in Panisagar also. So I had some experience of going to the refugee camps, seeing how the condition of those people are. इनका थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए. What is happening regarding resettlement? तुम अपने देश पे रह के from one state to another state, you are a refugee and suddenly when you become a refugee, अब तुम त्रिपुरा में आ गए, you do not have your PRTC, you do not have your residency सर्टिफिकेट, यू डू नॉट हैव योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ नहीं है. तुम हो वोटर मिज़ोरम के, बट मिज़ोरम के लोग तुमको लेना नहीं चाहते एंड तुम त्रिपुरा में रह रहे हो, तुम वोट नहीं दे सकते. तो इफ़ यू आर नॉट ए वोटर एज सच, यू आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट. मान सकते हो दैट्स ए सम सॉर्ट ऑफ ए फैक्ट, बट इट मे नॉट बी ट्रू एग्जैक्टली, बट यही है सच्चाई कि अनटिल अनलेस यू आर ए वोटर, यू आर नो वन फॉर द गवर्नमेंट. अब द पॉइंट वॉज कि फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से ही देर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू रीसेटल देम बैक टू मिज़ोरम. उनको मिज़ोरम भेजा जाए वापस. एंड until 2014 an estimate of 5,000 individuals returned to Mizoram in various batches. ठीक है, अब गए तो थे, बट मेनी पीपल वेंट, दे ऑल्सो मेनी पीपल केम बैक. व्हेन दे वेंट बैक टू मिज़ोरम, वहाँ पे प्रॉब्लम हुए. देर वेर अगेन दे वेर नॉट फीलिंग सिक्योर्ड, तो फिर वो लोग फिर वापस आ गए. तो अल्टीमेटली एक्चुअल रीसेटलमेंट हुआ नहीं मिज़ोरम साइड से. सो इन 2018 में क्या हुआ, देर वॉज ए क्वाड्रीपार्टाइट, मतलब 4 पार्टी मिलके पैक्ट वॉज डन. कौन कौन है पार्टी? त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ब्रू कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इन 2018 वो पैक्ट हुआ कि दे आर सपोज टू रीसेटल इन मिज़ोरम. हाउएवर नॉट ओनली द नेटिव मिज़ो ग्रुप, जो नेटिव मिज़ो ग्रुप थे, दे ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अपोज्ड द थिंग. एट द सेम टाइम जो द रियंग्स दे ऑल्सो फियर्ड एज ए थ्रेट ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि वहाँ पे जाएंगे तो फिर शायद जिंदा ना बच पाए. तो सो द थिंग इज दिस इन 2018 इट डिडंट वर्क आउट. तो आई वॉज देयर एट द टाइम. वी ट्राइड कि उन लोगों को भेजा जाए, बट हुआ नहीं उस टाइम पे. ठीक है, वी ट्राइड, हम लोग मिज़ोरम ऑफिशियल्स ऑल्सो केम. देयर वॉज अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उन लोगों का सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं नॉट काउंसलिंग, सेंसस सॉर्ट ऑफ किया जा रहा था उन लोगों का, काउंटिंग किया जा रहा था, आइडेंटिफिकेशन चल रहा था उनका, फिर भेजा गया था, बट अल्टीमेटली इट डिडंट हैपन. देयर वेर प्रॉब्लम, देयर वेर इश्यूज. तो क्या हुआ इन 2020, अगेन ए क्वाड्रीपार्टाइट पैक्ट वॉज साइंड. अब यहाँ पे द डिफरेंस वॉज दे विल बी रीसेटल्ड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. तो 2018 पे रीसेटल करना था इनको मिज़ोरम पे. इन 2020 इट वॉज द सेम पैक्ट, बट यहाँ पे रीसेटलमेंट विल बी डन इन त्रिपुरा. कि इतने सालों से दिस 37,000 पीपल दे वेर इन त्रिपुरा. एट द सेम टाइम वो अभी 37,000 नहीं रहे, क्योंकि बच्चे हो गए एंड सम ऑफ देम डाइड ऑल्सो. तो अल्टीमेटली इट इंक्रीज भी हो चुका था. एंड सिंस बहुत सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, दे वर डूइंग सम वर्क, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वर्क ऑल्सो. इन लोगों को रेशन नहीं मिल रहा था. दे वर सप्लाइड रेशन थ्रू द सब डिविजन, उनको सप्लाई किया जाता था. अल्टीमेटली मुश्किल था. बट इन 2020 इट वॉज डिसाइडेड कि भाई इतने दिनों से इधर पे रह रहे हो, तुम लोगों को त्रिपुरा में ही सेटल करवाया दिया जाएगा. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट earmarked 661 करोड़ का पैकेज टू एड दिस रिहेबिलिटेशन एफर्ट. अब इस पे क्या क्या दिया जा रहा था? रेजिडेंशियल प्लॉट, फिक्स डिपॉजिट ऑफ 4 लाख, 1.5 लाख ग्रांट टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज, फ्री रेशन एंड मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के साथ वी हैड टू टाई अप उन लोगों का अकाउंट खोलने के लिए. प्रॉपर उनके पास ना आधार है, ना मतलब रेसिडेंसी, सिटीजनशिप कुछ नहीं है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ टसल, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क लॉट टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग देम. एंड अल्टीमेटली उन लोगों का बैंक अकाउंट खोला गया, इतने लोगों का आइडेंटिफिकेशन. इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट फाइनली दे एग्रीड कि त्रिपुरा में दे विल सेटल डाउन. They will be given residency certificate, and this renewed 2020 pact उसमें promise to include the displaced Riyangs in the electoral roll of Tripura. ये है चीज़.
इलेक्टोरल रोल ऑफ त्रिपुरा में अगर यू गेट एंट्री, दैट मीन्स यू बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो. तो ये ऑब्वियसली दैट वाज ए मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे फॉर द त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑल्सो. एक तो यहाँ पे पैकेज मिला एट द सेम टाइम, इफ़ दे इंक्लूड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ त्रिपुरा, तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा ही है. तो ये है कहानी अबाउट द ब्रू रीसेटलमेंट. एंड यहाँ पे जो न्यूज़ था ये थोड़ा पढ़ लेना कि अभी क्या चल रहा है. नाउ PVTG, दिस इज इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. PVTG नॉर्मल तो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, बट PVTG क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ ट्राइबल ग्रुप. दे आर मोर वल्नरेबल. अब वल्नरेबिलिटी इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द अकाउंट ऑफ प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइन इन एंड और स्टेगनेंट पॉपुलेशन. त्रिपुरा में इट्स ओनली द रियांग विच इज़ द only one PVTG. Total 75 PVTGs are there out of 705 scheduled tribes in India, and they are spread over 17 states and UTs as per 2011 census. But it's important to know कि त्रिपुरा में PVTG कौन है. It is Riang, and it's important to know the मतलब criterias of identification. ये गया पहला न्यूज़. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, an important news. This is about 24.52 crore sanction to link गोमती with मेघना. गोमती के साथ मेघना का कनेक्शन एंड त्रिपुरा बांग्लादेश का ट्रेड बूस्ट होने के चांसेस. सो टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि त्रिपुरा बांग्लादेश में ये वाटरवेज के साथ क्या मतलब व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वाटरवेज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड हाउ इट्स व्हाट्स द करंट स्टेटस एज सच, उसको थोड़ा समझते हैं और कैसे डेवलप हुआ ये करंट सिनेरियो. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री, कमर्स, टूरिज्म, सेक्शन ई और सेक्शन डी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो. ठीक है, लूकिस्ट एक्टिस्ट पॉलिसी के अंडर भी इट्स इंपॉर्टेंट. तो 1971 इफ यू रिमेंबर, इंडिया पाकिस्तान वार लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑल ऑफ यू नो दैट. ठीक है, 1972 क्या हुआ, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. उसी साल में इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो साइन प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, PIWTT. इट इज़ इंपॉर्टेंट, PIWTT. अब PIWTT क्या है? PIWTT इट्स अ बाइलेटरल एग्रीमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कीपिंग देयर रेस्पेक्टिव वाटरवेज नेविगेबल. दिस इज रिगार्डिंग वाटरवेज एंड प्रोवाइडिंग infrastructure facilities. Both countries will mutually decide the proposed expense. Voyage permission shall be taken at least 4 days. Not important. Vessels shall share equal tonnage. So this is the criteria of or the agreement जो था PIWTT, Protocol on Inland Water Transit and Trade, ये इसके pointers है. अब recently क्या हुआ? Recently you might have heard कि May 2020 में second addendum to this PIWTT was done. यहाँ पे new water route and ports of call between two countries were declared. एक था दाऊदकांती and Shonamura route on Gomati River. So basically it is the Gomati River that is flowing from Tripura to Bangladesh and finally connecting to Meghna. Trial run first export consignment from Bangladesh to Tripura, it happened through inland waterways on 3 to 5 September. और एक वेसल आया था, you guys must have heard कि MV Premier, it started from Daudkandi, Chattogram and was received at Shonamura. This Shonamura Daudkandi route, I don't know if I am pronouncing it correctly or not, correct me if I am wrong, but वैसे भी करोगे कैसे तो थोड़ा कमेंट लिख दो भाई. अब the inland waterways route between over the river Gomti was included in the list of Indo-Bangla Protocol IBP routes in May 2020. अब ये नया चीज़ है भाई कि ये क्या है इंडो-बांग्ला प्रोटोकॉल. बेसिकली ये नया चीज़ कुछ नहीं, ये बहुत काफ़ी पुराना चीज़ है. IBP के बारे में पढ़ लेना. IBP एज पर IBP ऑन दिस इज IBP क्या है? इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट. थोड़ा ये रूट वूट देख लो. ये देखो, ये है सोनामुरा, यहाँ सोनामुरा में है श्रीमंतपुर, दाऊदकंती इधर पे है
This is the Gomati River. This is Indian Inland National Waterways, and this is IBP route. This is IBP route inside Bangladesh. ठीक है, यहाँ पे नेशनल वाटरवे 16 इट्स देयर. दिस इज नेशनल वाटरवे 1. तो ये सब है. अल्टीमेटली करना क्या है, वी वांट टू कनेक्ट दिस टू दिस कि फाइनली हम लोग NH1 तक पहुंच पाए या फिर हम लोग यहाँ पे हल्दिया तक पहुंच पाए, सो दैट जो भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड कैन डायरेक्टली कम हियर और वी कैन ऑल्सो सेल आवर गुड्स टू आउटसाइड इंडिया. ये है चीज़. एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल रूट्स क्या क्या है इधर पे देख लेना. अंडर दिस प्रोटोकॉल 50-50 कार्गो शेयरिंग जो पहले बताया था अभी इज परमिटेड. एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन इंडियन साइड फॉर दिस. सेकेंड एडेंडम में क्या हुआ, सेकेंड एडेंडम में न्यू रूट एज IBP रूट 9 and 10 was added. Shonamura and Daudkandi was declared as additional port of call for vessels. Port of call क्या होता है देख के मुझे कमेंट्स पे बताओ. What is port of call? ये क्या है बताओ. ये देखो, बेसिकली दिस इज श्रीमंतपुर एंड श्रीमंतपुर इज एन LCS. LCS क्या होता है, लैंड कस्टम स्टेशन. पिछले वाले करंट अफेयर्स में भी है, बताया था, वो देख लेना पिछला वाला करंट अफेयर्स अगर नहीं देखे तो. यहाँ पे है दिस इज़ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर श्रीमंतपुर और यहाँ पे है जट्टी इन गोमती रिवर. दिस इज़ द IBP रूट, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो ये है कहानी, इतना ही है उसके बारे में. ठीक है, अब हाँ अच्छा, ये तो है एग्जिस्टिंग सिनारियो. नया सिनारियो है ये जो न्यूज़ कि गोमती को मेघना के साथ कनेक्ट करने का दे हैव सैंक्शन 24.52. ये न्यूज़ पढ़ लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे सोनामुरा टू उदयपुर 40 किलोमीटर, इंस्टॉलेशन ऑफ 9 फ्लोटिंग जेट्टीज, प्रिवेंशन ऑफ वाटर बैंक इरोशन विल बी डन. रिसोर्स सोनामुरा रिवर रूट वॉज डिक्लेयर्ड इन इंटरनेशनल वाटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. ये सब भी थोड़ा देख लेना. सोनामुरा दौदकंदी प्रोटोकॉल रूट 40 किलोमीटर इज अंडर कंसिडरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये सारे चीज़ देख लेना. दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज वन ऑफ द मैसेज बाय आवर Governor Indra Sena Reddy Lallu. By our governor, he gave a message of Makar Sankranti. This is a very informative message by him. Makar Sankranti के बारे में. It's a Hindi festival, also called Uttarayan, and it's marked the transition of sun from zodiac Dhanu to Makar. That's why Makar Sankranti. This is dedicated to solar deity Surya. It is a harvest festival and celebrated to farewell the winter. This is also known as Posh Sankranti, Pongal, Makar Villako, blah blah blah, Dalchura. तो ये सब है. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया सोशल कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा. तो ये भी क्वेश्चन MCQ में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट छोबीमुरा, एन आइडियल साइट फॉर कल्चरल टूरिज्म. इधर पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है. नाउ छोबीमुरा हैज़ कम इन टू इम्पॉर्टेंस बिकॉज सौरभ गांगुली हैज़ विजिटेड हियर एंड इट इज़ बीइंग पब्लिसाइज्ड, सॉर्ट ऑफ मार्केटेड एज अ टूरिज्म स्पॉट. कहाँ पे है देख लेना. गोमती रिवर के बगल में है छोबीमुरा. इसका लोकेशन देख लेना. अबाउट छोबीमुरा, दिस इज़ फेमस फॉर रॉक कार्विंग एंड दिस विथ स्पेशल रेफरेंस टू दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ त्रिपुरा. में ये क्वेश्चन आ जाता है भाई. ठीक है, दिस रॉक कार्विंग इज इम्पॉर्टेंट. There are huge images of Shiva, Vishnu, Kartika, Mahishasur Mardini, Durga, and they date back to 15th-16th centuries AD. ये है देवतामुरा, मतलब रेंजेस पे 90 डिग्री पे है. दिस ए इको टूरिज्म सेंटर. इमेज ऑफ महिषासुर मर्दिनी, ऑल्सो कॉल्ड चक्रकमा. इसके बारे में देख ला. 10 आर्म होल्डिंग वेपन इन ऑल 9 आर्म्स एक्सेप्ट लोअर विच होल्ड्स द हेयर ऑफ डेमन किंग. तो थोड़ा देख लेना अबाउट छोबीमुरा. इंपॉर्टेंट. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आया था एक एडवर्टाइजमेंट पैन इंडिया 188 डिस्ट्रिक्ट में
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. नो, इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बेनिफिशियरीज के साथ बात किया आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? दिस स्कीम बिकम्स इम्पोर्टेंट. PM जनमान, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, नॉट फ्रॉम ए नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम त्रिपुरा पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों? अभी पता चलेगा. द रीज़न इज़, इसके बारे में थोड़ा जान लो. इट वॉज लॉन्च ऑन 15 नवंबर ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस. ये किसका बर्थडे है? ऑफ बिरसा मुंडा. दिस स्पेसिफिक स्कीम इज एन एफर्ट एम्ड एट सेचुरेटिंग PVTG. पहले न्यूज़ पे तुम लोग देखे थे, PVTG फैमिलीज विथ इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट एंड एंटाइटलमेंट एंड हैबिटेशन विद बेसिक फैसिलिटीज़. यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड PVTG कम्युनिटीज़. देयर विल बी 11 critical intervention overseen by 9 line department ensuring implementation of existing scheme in villages inhabited by PVTG. क्या क्या है, क्या क्या इंटरवेंशंस है, ये सब लिखा हुआ है, देख लेना. हाउसिंग, कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कम्युनिटी वाटर सप्लाई, हॉस्टल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या क्या मेजर स्कीम्स है वो भी देख लेना. सो दैट्स इट आई थिंक फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड डू राइट डाउन इन द कमेंट बिलो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ वीडियो. एंड दैट्स इट. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट. बाय बाय.